Okay, students, see in the last lecture, we have done with, see in the last lecture, we were doing the enthalpies of physical transformation. Now, physical transformation means what? Changing the substance from one physical state to another physical state. And to convert substance from one state to another state, we require some energy. And that energy is called as what? Enthalpy of physical transformation. Now, under physical transformation, two transformations are there. One is the enthalpy of phase transition. Here, we convert the substance from its one physical state to another physical state. Correct? And here we convert, like we convert solid to liquid. Then here we convert liquid to gas. And here we convert solid to gas. Correct? So all these 3 points are done, and we also seen one formula here. Now we are going today for the second one, enthalpy of atomic or molecular changes. Enthalpy of atomic or molecular changes, and in that the first enthalpy under this heading is enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization. Now first we'll see what is the meaning of this, and then we'll come back to this point. Okay, so now I'm starting here with, yes, I'm starting with enthalpy of ionization. Enthalpy of वन मिनट स्टूडेंट काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय एक मिनिट. Yes, now we're going for the next heading, enthalpy of ionization. Now, what is the meaning of enthalpy of ionization? See here in this enthalpy of ionization, suppose for example, we are having sodium atom, and normally sodium is a metal, and sodium metal is in the which state? Solid, but here we use sodium metal which is in gaseous state. So we are using sodium metal which is in the gaseous state. And you know, sodium atomic number is 11, electronic configuration is 281, atomic number is 11, electronic configuration is 281. Now we have to remove one electron from here. Now to remove this one electron, here we have to supply some energy to sodium. We have to supply some energy to sodium in order to remove the electron, correct? So if I remove electron here, then you know, here we get Na plus, because we are removing one electron, Na plus, and Na plus is in the which state? Gaseous state, and we have removed the electron. So originally here we are having sodium as an atom, and here we are having sodium as an ion. So we are converting atom into ion. But to convert atom into ion, what we have to do? We have to remove an electron from here. And energy required to remove the electron from an atom to form an ion is called as what? Enthalpy of ionization. मतलब कोई भी एटम से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने आप रिमूव नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी, और जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सप्लाई करोगे, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में एटम है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयन है, तो एटम से आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगा, that energy is called as enthalpy of ionization, correct? And then here how many moles are taken here? 1 mole. We always have taken 1 mole. और दूसरा, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कौन से फॉर्म में रहेगा? गैसियस स्टेट. और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमें आयन मिल रहा है, वो भी कौन से फॉर्म में? गैसियस स्टेट में.
and here I'll just write down, then I'll write here the enthalpy of, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, enthalpy of ionization, देखो ION लिखना है, is equal to 494 किलोजूल पर मोल। पर मोल मतलब किलोजूल पर मोल, मतलब अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम से अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, करेक्ट। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? इट इज द, आई जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन आल्सो सो दैट it is the enthalpy change occurs, you may write in own word also, is the enthalpy change occurs while removing an electron from one mole of गैसियस एटम। तो तुम्हारे डेफिनेशन में ये कंपलसरी होना चाहिए कि तुम जो सब्सटेंस का अमाउंट ले रहे हो, सब्सटेंस का अमाउंट कितना रहेगा, 1 मोल रहेगा, यहाँ पे 1 मोल है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले, जिससे तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे गैसियस स्टेट में होना चाहिए, करेक्ट। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स while removing an electron from an 1 mole of gaseous atom is called as enthalpy of ionization. Suppose for example, देखो अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, we are having magnesium atom. Magnesium is a metal normally in the with state solid, लेकिन हमें उसे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो कौन से फॉर्म में लेना है, गैसियस फॉर्म में लेना है, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 1 मोल और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 282, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, Mg2 प्लस, बिकॉज आई एम रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो आई एम रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, और हियर आई राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और ये जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और ये एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट enthalpy, that I'll just write enthalpy of ionization is always पॉजिटिव। मतलब ये जो वैल्यू रहेगा हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी जो वैल्यू मैंने लिखा है वो भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि पॉजिटिव क्यों रहेगा? बिकॉज यू आर सप्लाइंग एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव द, मतलब सोडियम एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नीशियम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलवा, इसलिए ये वैल्यू हमेशा कैसे रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो होपफुली तुम्हें इसका मतलब समझ में आया होगा कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तुम तो तुम्हारे ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, खाली मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हाइल रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एटम किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, आयोनाइजेशन, और उसके लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, करेक्ट। नाउ आफ्टर एंथैल्पी ऑफ द आयोनाइजेशन, नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, that is called as electron gain एंथैल्पी। उसका रिवर्स है। यहाँ पे हम लोगों ने एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अभी यहाँ पे हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब अगर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो यहाँ पे क्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कभी नहीं, क्योंकि उसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करेगा। इससे अच्छा वो क्या करेगा, क्लोरीन विल प्रीफर टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद देखो यहाँ पे Cl एटम है, एटम है, और Cl जो भी एटम यहाँ पे रहेगा उसे कंपल्सरी हमें कौन से फॉर्म में लेना है, गैसियस स्टेट में लेना है।
जो भी एक्चुअली अभी क्लोरीन गैस ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी एटम रहेगा उसको कंपल्सरी गैसियस स्टेट में ही लेना है। तो क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट +1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और यहाँ पे फिर हमें मिलेगा Cl माइनस, Cl माइनस इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे 287 था, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ, 288 हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस हुआ। लेकिन जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो एटम के अंदर बहुत ही अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, तो इसलिए एटम अनस्टेबल होगा। फिर वापस खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये एटम से एनर्जी बाहर चला जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एटम में से जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इस एग्जांपल के लिए 349 किलो जूल, 349 किलो जूल पर मोल, 349 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी होगा। ओके, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287 है, इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे एनर्जी चेंज होगा, तो इतना एनर्जी चेंज हो रहा है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Then, so what is electron gain enthalpy? The enthalpy change occurs when 1 mole, ये यहाँ पे देखो क्लोरीन का अमाउंट कितना लिया हुआ है, 1 मोल लिया। when 1 mole of gaseous substance accept electrons to form anion, देखो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे Cl माइनस बोल रहा है। Cl माइनस को मतलब ये आयन ही है, लेकिन कौन सा आयन है, इट इज एनायन। मतलब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज एनायन, एंड उसके लिए मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एटम में जो एनर्जी रिलीज होगा, that energy can be called as what, electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? It is the enthalpy change occurs, देखो जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो भी डेफिनेशन लिखोगे तो भी चलेगा, वो भी करेक्ट है, या टेक्स्ट बुक में देखोगे लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब सिंपल मीनिंग तुम्हें समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन, मतलब एंथैल्पी एनर्जी चेंज होगा कभी, when 1 mole of the gaseous substance, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट 1 मोल है, 1 mole of the gaseous substance accept इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एटम, मतलब वहां पे जो एनर्जी चेंज होगा, उस एनर्जी चेंज को हमें क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू निगेटिव लिखा है, लेकिन कभी कभी कोई सब्सटेंस के लिए वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, मतलब ज्यादा करके निगेटिव होता है, लेकिन कोई सब्सटेंस के लिए वैल्यू पॉजिटिव भी आता है। तो यहाँ पे वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और वैल्यू कैन बी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो होपफुली तुम्हें, मतलब देखो हम लोगों ने यहाँ पे दो कंसेप्ट किए हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या देखा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। व्हाट इज आयोनाइज, तो देखो तुम्हें इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। व्हाट इज आयोनाइजेशन? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from 1 mole of gaseous atom, correct? ये वैल्यू पॉजिटिव है। What is the electron gain enthalpy? It is the enthalpy change occurs when 1 mole of gaseous substance accept electron to form an anion, and this value can be either positive or it can be negative. यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट हुआ। तो देखो यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में क्या लिखा था, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और उसके अंदर ही और एक कौन सा एंथैल्पी था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंथैल्पीज हमें करनी। नाउ आई एम गोइंग फॉर सेकंड एंथैल्पी. Second enthalpy is enthalpy of atomization. तो अभी हमें देखना है enthalpy of atomization क्या होता है, करेक्ट? तो 1 minute. Sorry, enthalpy of atomization. Okay, now here sometimes the spelling they write as a Z, sometimes they write the spelling as a S, but enthalpy of atomization, and enthalpy of the atomization is given by the symbol delta H atom, atom. Enthalpy of atomization. Now what is the meaning? देखो, for example मैं सबसे पहले example लेता हूँ यहाँ पे. See, we are having chlorine. We are having here chlorine Cl2. Cl2 is in the which state? Gas. Cl2 का मतलब क्या होता है? Cl सिंगल बॉन्ड Cl. Cl2 का मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl. Now here अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, बॉन्ड ब्रेक करना है मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? I have to supply energy. अभी मैं एनर्जी यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ और ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब एनर्जी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज. क्योंकि देखो ना, सिंपल है, ये Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, और मुझे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बॉन्ड अपने आप तो ब्रेक नहीं होगा. तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें सप्लाई करना है एनर्जी. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा, इससे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा. और फिर उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 Cl atom which is in the gaseous state, other Cl atom which is also in the gaseous state. यहाँ पे 2 Cl atom हमें मिलेंगे and both of them are going to be in the gaseous state. तो 2 Cl अलग अलग लिख सकते हो या दोनों को साथ में भी लिख सकते हो. तो ये मिला, और यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिलेगा that is called as delta H, enthalpy of atomization, that is equal to enthalpy of atomization, and this value is equal to how much? 242 kilojoule per mole. kilojoule per mole, enthalpy of atomization, correct? So Cl2 in the gaseous state will convert into Cl plus Cl, and enthalpy of atomization is equal to 242 kilojoule per mole. देखो ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है. नाउ आई टेक अदर एग्जांपल. देखो दूसरा मैं एग्जांपल यहाँ पे लूंगा मीथेन. कंपल्सरी ध्यान में रखना है, जिस सब्सटेंस में तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना है वो कंपल्सरी कौन से फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म. सॉलिड और लिक्विड में क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमें सॉलिड और लिक्विड में कोई बॉन्ड ब्रेक करना है तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी. अगर हमें कोई भी सब्सटेंस में सॉलिड और लिक्विड में अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी. तो यहाँ पे गैसियस स्टेट में क्या होता है? वी रिक्वायर लेस एनर्जी. तो लेस एनर्जी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कार्बन एज अ ग्राफाइट, सॉरी गैस, कार्बन गैस प्लस ये 4 बॉन्ड. देखो मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखते हैं? सी एच 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 एच. तो अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे एक H मिलेगा, यहाँ पे दूसरा H मिलेगा, यहाँ पे तीसरा H मिलेगा, और यहाँ पे चौथा H मिलेगा. तो यहाँ पे कार्बन मिलेगा गैसियस स्टेट में, प्लस 4 हाइड्रोजन मिलेंगे गैसियस स्टेट. ये बॉन्ड ब्रेक हो गए.
और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास मॉलिक्यूल है और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन एटम मिल रहा है, और हियर वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एटम. तो वी आर कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल इनटू एटम, लेकिन मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल को सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी, और जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. देखो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एनर्जी बोलते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी के लिए कौन सा वर्ड आएगा, एंथैल्पी आएगा. तो हियर द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन फॉर दिस रिएक्शन, the enthalpy of ionization is equal to, enthalpy of ionization is equal to, and this value is equal to, I'll write value is 1660, 1 minute, 1660 किलो जूल पर मोल. ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, तो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, the enthalpy change occurs, मतलब इतना एनर्जी चेंज हो सकता है. द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ, यस, देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सब दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट मतलब है, लेकिन मैं थोड़ा डेफिनेशन इजी करके बोल रहा हूँ, तो अगर तुम लोग यहाँ से भी डेफिनेशन लर्न करोगे तो भी चलेगा. द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग द डिसोसिएशन. डिसोसिएशन क्यों, कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिसोसिएशन. और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करने, अमाउंट कितना है उसका, 1 मोल है, अमाउंट 1 मोल है. और दूसरी सब्सटेंस कौन से फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, गैसियस फॉर्म में दिया, करेक्ट. सो द एंथैल्पी चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ 1 mole of a gaseous substance, 1 mole of the gaseous substance into its atom, into its atom. मतलब यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है, all the molecule will convert into their atom. इसलिए मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. करेक्ट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. आ रहा है समझ में. तो हम लोगों ने 3 एंथैल्पी किए. सबसे पहले किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड किया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज. मतलब वैल्यू कितना भी होने दो, वेयर इट कैन बी स्मॉलर और इट कैन बी लार्जर, लेकिन वैल्यू जो भी रहेगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. करेक्ट, यस. So we have finished with enthalpy of atomization. Now, before I go for the third part over here, third type, anyone has any difficulty in till now in today's lecture? Yes, if you have, please unmute yourself and tell me. Yes, okay, no doubt. I'll just move ahead. So now I'm going for third enthalpy here. देखो थर्ड हमारे पास पहले एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हुआ, एंथैल्पी. नाउ आई एम गोइंग फॉर थर्ड एंथैल्पी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. Why I'm showing it on a tabular form, because हम लोग बहुत सारे एंथैल्पीज करेंगे, फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. So now I'm going next heading here. Yes. So next heading I'm going for enthalpy of solution. It is shown by the symbol delta H.
and here in between we write solution, enthalpy of solution. तो ये रहा हमारा symbol of enthalpy of solution, correct? अभी enthalpy of solution कैसे दिखना है वो मैं बताता हूँ अभी. 1 minute. Enthalpy of solution. Now we'll see what is the meaning of enthalpy of the solution. Yes. Like for example, see here. I'll take one example, sodium chloride. Sodium chloride is a salt. And salt is in the which state? Solid. Sodium chloride is a salt. And we know it is a ionic compound. It is ionic compound. Sodium chloride salt, sodium chloride salt, correct? When dissolved in water, AQ. AQ means aqueous. Sodium chloride salt dissolved in water means when it is dissolved in aqueous state. Yes, dissolved. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? NeCl aqueous, मतलब सोल्यूशन मिलेगा. देखो अगर घर पे हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं और पानी में डालते हैं तो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा. सॉल्ट वाटर मतलब वाटर के अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स रहेंगे. और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा H एंथैल्पी of solution, and enthalpy of the solution is equal to, enthalpy of the solution is equal to 4 kilojoule per mole. इसका मतलब क्या हुआ कि when we dissolve sodium chloride salt in water, that time सोडियम, देखो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज एब्सॉर्बिंग, प्लस मतलब एब्सॉर्ब, माइनस मतलब रिलीज. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर, क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर से एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. सो अभी तुम लोग वाटर में एनर्जी किधर आया? तो देखो ना, वाटर में अगर हम लोग सादा पानी लेते हैं और सादे पानी में अगर हम लोग थर्मामीटर डीप करेंगे तो नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर भी हमें 30 डिग्री मिलता है, या नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर भी हमें 25 डिग्री मिलता है. पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री बता रहा है पानी, इसका मतलब पानी के अंदर एनर्जी है, करेक्ट? एनर्जी है. So sodium chloride salt is absorbing energy from water to form solution. तो इसीलिए मतलब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है. मतलब अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, सोडियम यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 1 मोल. तो अगर हम लोग 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर करेंगे तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन तो हमारा बनेगा. बट एट दैट टाइम how much energy will be absorbed? 4 kilojoule. And this energy we are getting while preparing the solution, and therefore it is called as the enthalpy of solution. So it is called as a enthalpy of solution. And जो हमारा enthalpy of the solutions है, यहाँ पे total value, ये value जो हमारा है, it can be positive or it can be negative. लेकिन अभी हमें देखना है कि enthalpy of the solution जो कैसे कैलकुलेट करते हैं. मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है वो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे. 1 मिनट. यस, enthalpy of solution, it is the enthalpy change occurs, it is the enthalpy change occurs when
1 mole of a substance, 1 मोल। देखो हम लोगों ने अगर यहाँ पे एग्जांपल में देखोगे तो एग्जांपल में हमने क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कितना लिया था, 1 मोल लिया था, कंपल्सरी 1 मोल। सी ऑल आवर डेफिनेशन सेज फॉर 1 मोल it is the enthalpy change occurs when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. Now what is the meaning of specified amount? Specified amount का मतलब क्या होता है, देखो कि हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट लोगे वो रैंडम नहीं हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने पानी कितना लिया है, 1 लीटर लिया हुआ है, 10 लीटर लिया है, कि ये पानी का अमाउंट कितना है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, कंपल्सरी। तो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड, मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम सॉल्ट जो है वो कितने वाटर में डिसॉल्व करते हो। आर यू डिसॉल्विंग इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, आर यू डिसॉल्विंग इट इन 10 लीटर ऑफ वाटर, आर यू डिसॉल्विंग इन 20 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर मतलब ऐसा रैंडमली नहीं कि सॉल्ट लिया और पानी में डाला, नहीं। कंपल्सरी सॉल्ट का अमाउंट कितना लेना है हमें, 1 मोल। पानी का अमाउंट भी कितना लेना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, तो ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। सो हियर it is the enthalpy change occurs when it is the enthalpy change occurs when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. Okay, तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जो मैंने देखा था कि सोडियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, 4 किलो जूल। तो अभी हमें देखना है ये जो 4 किलो जूल वैल्यू है उन्हें कैसे कैलकुलेट किया रहेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा वो हमें देखना है, करेक्ट। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, so the enthalpy of solution is calculated by using enthalpy of solution is calculated by using two steps. Enthalpy of the solution, देखो अगर कोई भी बच्चा सिंसियर है तो इतने सारे अगर पॉइंट अगर अपने नोटबुक में लिख देगा तो उससे यहाँ से भी डायरेक्टली स्टडी कर सकता है, तो स्पेशल नोट्स वगैरह रिफर करने की भी जरूरत नहीं लगेगी। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। सबसे पहला वाला स्टेप देखो, हमने क्या लिखा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट था, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट था। तो सोडियम में जैसे सिंपल लेता हूं मैं कि मेरे पास सॉल्ट कौन सा है, MX इज अ सॉल्ट, और आई जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप, द आयंस आर separated from the molecule. Ions are separated from the molecule, correct. So how the ions are separated, देखो यहाँ पे ions are separated from molecule, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा जनरल एग्जांपल होने दे, MX सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, आयोनिक सॉल्ट है। अगर इस सॉल्ट एंड इन द विच स्टेट, सॉलिड स्टेट है, सॉल्ट इन द सॉलिड स्टेट, मुझे इसे वाटर में डिसॉल्व करना, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने के पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये सॉल्ट में जो M और X है उनको अलग करूंगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा M प्लस, लेकिन मुझे M प्लस कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैसियस स्टेट में। अभी तक मैंने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है, खाली मेरे पास सॉल्ट है, और सॉल्ट में जो M और X है उनको मुझे एक दूसरे से अलग करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सप्लाई करूंगा एनर्जी। अभी देखो मैं यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब MX एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो MX अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वैल्यू जो होगा वो कैसे रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो सॉल्ट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी and it will change into what, M plus
in the gaseous state and X minus in the gaseous state. और यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज डेल्टा एच एल. डेल्टा एच एल का मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी. क्रिस्टल मतलब डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एल एल मतलब व्हाट, क्रिस्टल लैटिस और लैटाइस भी बोल सकते, लेकिन लैटिस एंथैल्पी. एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा. हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगा? बिकॉज द सॉल्ट मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी. ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एम और एक्स सेपरेट हो रहे हैं एंड दे आर इन द विच स्टेट, गैसियस स्टेट. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को उसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी. एंड दिस एंथैल्पी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ. उसके बाद सो हियर आई जस्ट राइट डाउन हियर डेल्टा एच एल is always delta HL is always positive, is always positive. Now I'm going for second step here. Second step. Now what is second step here? तो अभी जो मेरे पास देखो, पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्ट को आयंस में कन्वर्ट कर दिया. फिर अभी मैं मतलब अगर कोई भी सॉल्ट अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो पहले क्या होगा, सॉल्ट के आयन एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे से अलग होने के बाद अभी M प्लस गैसियस स्टेट में, now then it will combine with the water. फिर वाटर में डिसॉल्व होगा and then we get here, suppose I have taken how many molecule of the water, X molecule of the water. तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, M H2OX ब्रैकेट कंप्लीट और M के ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस. सिमिलरली दूसरा आयन था X माइनस will be surrounded by like Y molecules of water. यहाँ पे क्या मिलेगा, M X H2OY, मतलब here M plus will be surrounded by water and X minus will be surrounded by the water and we get here minus sign, and this is called as delta H hydration. This is called as what, delta H hydration. मतलब HYD means hydration enthalpy. It is called as a hydration enthalpy and this value is always going to be negative. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेटल M प्लस है वाटर को उसको सराउंड करे, मतलब वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. मतलब कोई भी जब दो एटम एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करते, देखो सिंपल है, अगर कोई भी हम लोग बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स है A एंड B, ये दो एटम्स है A एंड B, तो अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे M plus is forming a bond with water, X minus ion is also forming the bond with water and water के साथ bond form करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, hydration HYD. HYD means which enthalpy, hydration enthalpy, and this value is going to be negative. So I just write down here delta HYD, hydration enthalpy. This is called as a hydration enthalpy is always negative. करेक्ट. तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्ट रहेगा तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को उसके आयंस में कन्वर्ट करेंगे, बट आयंस आर इन द विच स्टेट, गैसियस स्टेट. और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. उसके बाद हमें आयंस मिलेंगे एंड आयंस विल बी सराउंडेड बाय द वाटर. आयंस विल बी सराउंडेड बाय वाटर मींस a bond will form between iron and water and during that cases the energy will be released, so delta H value is going to be negative, correct. And so finally here I will get
So if I want to find out enthalpy of solution, yes, then I have to add the enthalpy of the first step. I have to add the enthalpy of the second step. So here I'll write down the formula delta HL, crystal lattice enthalpy, plus delta H hydration enthalpy. So enthalpy of the solution is equal to crystal lattice enthalpy plus hydration enthalpy. ये दो वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला एक हुआ बिकॉज इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं. तो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला? क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी. एल का मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी एंड डेल्टा एच वाई डी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. एंड हमें ये भी मालूम है ये वैल्यू जो रहेगा हमेशा रहेगा पॉजिटिव और ये जो वैल्यू रहेगा हमेशा रहेगा नेगेटिव, और दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा आंसर. करेक्ट. तो अभी इसके ऊपर मैं एक टॉपिक न्यूमेरिकल करूंगा. तो आई जस्ट डू वन न्यूमेरिकल, तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. Suppose I'll given the example here. I think the page number 4. 4 see here for sodium chloride salt, its crystal lattice enthalpy is plus 790 kilojoule per mole. सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी 790 किलोजूल पर मोल एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज प्लस 790 किलोजूल पर मोल. हाइड्रेशन एंथैल्पी इज 790 किलोजूल पर मोल. करेक्ट. तो मतलब सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को उसके पहला स्टेप क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड हमें इक्वेशन नहीं लिखना है, जो सॉलिड स्टेट में था वो कन्वर्ट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस. Na प्लस इन द गैसियस स्टेट, Cl माइनस इन द गैसियस स्टेट. और फर्स्ट स्टेप का जो एनर्जी है उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा HL एंड डेल्टा HL इज गोइंग टू बी 790 किलोजूल पर मोल. सेकेंड स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में Na प्लस विल कंबाइन विद द वाटर और हमें मिलेगा यहाँ पे NaH2O प्लस Cl माइनस विल कंबाइन विद वाटर गिव्स यू ClH2O माइनस. लेकिन यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो मालूम नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा X, यहाँ पे लिखूंगा X, here I'll write Y, so here also I'll write Y, and this value are called as the enthalpy of hydration. And enthalpy of the hydration कितना दिया हुआ है? सॉरी एक मिनट. तो मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू है सेम लिखा है दोनों जगह. ये वैल्यू है -786, यहाँ पे आएगा -786 किलो जूल पर मोल. पर ऑफकोर्स तो हमें एग्जाम में इक्वेशन बताना नहीं है, हमें ये मालूम करना था ये फर्स्ट स्टेप है, उसे बोलना है लैटिस एंथैल्पी और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है. दूसरा हमारा एंथैल्पी हाइड्रेशन है, उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, उसका वैल्यू निगेटिव. 1 मिनट, ये वैल्यू निगेटिव. करेक्ट. So I'll just write down the formula here. The enthalpy of the solution is equal to crystal lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Lattice enthalpy is 790 plus hydration enthalpy is -786 और करोगे तो कितना आंसर आएगा? 4 किलो जूल पर मोल. तो इसलिए देखो मैंने एग्जांपल में लिखा था तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट when dissolved in the water the enthalpy of the solution is how much? 4 kilojoule per mole. Enthalpy of the solution is 4 kilojoule per mole. Okay.
ये आंसर है ऐसा, लेकिन आंसर किसके ऊपर डिपेंड करता है? द आंसर डिपेंड्स अपॉन द लैटिस एंथैल्पी एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रेशन एंथैल्पी. करेक्ट. Now based on this, I'll just take one more example and then we may stop. For KCl, potassium chloride salt, its crystal lattice enthalpy is 699 kilojoule per mole. Its hydration enthalpy is minus 681.8 kilojoule per mole. Lattice enthalpy is 699 और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज माइनस 681.8. करेक्ट. पोटेशियम क्लोराइड मतलब पहले डिसॉल्व होने के आयंस फॉर्म करने के लिए और बाद में जो आयंस फॉर्म हो गए वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर द फॉर्मूला. द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी. देखो लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव है और हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है. और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा आंसर. 699 minus 681.8. Yes, so we got the answer here as 17.2 किलोजूल पर मोल. मतलब अगर हम लोगों ने पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर से कितना एनर्जी, देखो प्लस है, प्लस मतलब कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा 17.2. लेकिन ये आंसर जो एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन है, जो हमारा लास्ट आंसर है, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी पॉजिटिव or it can be negative. So I'll just write here the enthalpy of solution, the last answer of solution can be positive or it can be negative. Correct. Positive or it can be negative. So we have done till here. Okay. Now tell me here. So what concept you have done? आज देखो हमने 3 concept किए. देखो हमारा हेडिंग, इसमें हेडिंग क्या था? एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस. तो यहाँ पे क्या था? एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनेगा आयन, कैटायन. यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? एनायन. तो एटम में चेंज हो रहा है. यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक करके एटम में कन्वर्ट, एटोमाइजेशन. और यहाँ पे मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करे तो इसे सोल्यूशन. तो यहाँ पे सेकेंड हेडिंग हमारा था एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक or molecular change, and in that we have done enthalpy of ionization. यहाँ पे 2 एंथैल्पीज थे. बाद में हमने किया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और तीसरा एंथैल्पी था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं आगे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दूँ. ठीक है. तो बिफोर आई स्टॉप मीटिंग, टेल मी, डज एनीवन हैज एनी डिफिकल्टी? Yes. Okay. और किसी को सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल में सोम क्या डाउट था? बोलो. सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल मतलब कौन सा एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? 2 एग्जाम्पल मैंने किया. एक एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड का और दूसरा एग्जाम्पल था पोटेशियम क्लोराइड का. तो उसमें किसमें डाउट है तुम्हें और क्या डाउट है? ओके. सेकेंड एग्जाम्पल केसीएल वाला. केसीएल. ओके. ठीक. पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट. Now when potassium chloride salt, I'll just write here the first step. They have given which enthalpy? Lattice enthalpy. Lattice enthalpy means what? See, potassium chloride salt when it dissolved into water, we are having in the which state? Solid. और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K plus and Cl minus. K plus in the gaseous state, Cl minus in the gaseous state. और यहाँ पे जो भी एनर्जी होगा उसे हम लोग लैटिस एंथैल्पी, हमारा फर्स्ट वैल्यू जो दिया हुआ है 699.
तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, K प्लस कंबाइन विथ वाटर एंड Cl माइनस ऑल्सो कंबाइन वाटर। मतलब पहले स्टेप में KCl को डिसोसिएट करेंगे उसके आयंस में, और बाद में आयंस विल कंबाइन विथ वाटर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा KH2O प्लस, यहाँ पे हमें मिलेगा Cl H2O माइनस, और यहाँ पे वाटर मालूम नहीं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे X, यहाँ पे लिखूंगा Y। तो ये हुआ, और ये हमारा रहेगा कौन सा एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, 681 माइनस 680। और मैं स्टार्टिंग में बोला कि ये वैल्यू तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। फिर हमारा फॉर्मूला आ गया, एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज लैटिस एंथैल्पी जो 699 है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो -681.8 है, सब्ट्रैक्शन करो और ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? देखो आज हमने टोटल 3 एंथैल्पीज किए एंड दे ऑल एंथैल्पीज कम अंडर फिजिकल चेंज। एंथैल्पी का मतलब सिंपल है, हम लोग कोई भी प्रोसेस करेंगे तो वहां पे एनर्जी चेंज होगा, और जो भी एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। यस, एनीवन हैज, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू ऑल, किसी को कोई डाउट है? अगर है तो बोलो, आई जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड अदरवाइज आई विल एग्जिट फ्रॉम द विल एंड मीटिंग। ओके ठीक है, should I end the meeting then? ओके ठीक है, so we are ending the meeting here, I'll just stop. One minute.